हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के अंदर दिए गए प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। नंबर 1 इज द कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं वो बैठते हैं। देन देयर आर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस कमीशन, हरियाणा जुडिशियल सर्विस कमीशन या दिल्ली जुडिशियल सर्विस कमीशन को क्लियर करते हैं तब आप लोअर मजिस्ट्रेट बनकर कोर्ट के अंदर बैठते हैं। इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये अगर आप मेट्रो में पेपर क्लियर करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, बॉम्बे, आप अगर चेन्नई के अंदर अगर आप मजिस्ट्रेट लगे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। देन कम्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपके होते हैं एसडीएम और डीसी, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बाद पावर्स ऑफ कोर्ट्स एंड पावर्स ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स इज गिवन इन दी सीआरपीसी. Now, classes of criminal courts we have already discussed that there is a court of sessions, a judicial magistrate first class, metropolitan magistrate. In a state like UP, there is also a judicial magistrate second class. Then comes executive magistrate, and besides high courts and other courts established by law. So, for example, for POSCO, there is a special court established. For offences dealing with, let's say, narcotics, a separate court can be established. For offences dealing with political classes of crimes, a separate court can be established. A separate court is also established, let's say tribunal is established under Sarfarazzi and DRT Acts. So different kinds of courts, tribunals are in place in India. And in criminal courts, in the CRPC, these are the basic kind of criminal courts that are present. Now, every state shall be a session division and state shall consist of session division. So there are various session divisions. For example, in the state of Haryana, Ambala is a session division. Then Rewari is a session division. Faridabad is a session division. Hisar has a session division. There are various kinds of sessions division. Every session division shall be a district and shall contain of districts. Metropolitan area is a separate division, and alteration and limit and number of division is done by the state government in consultation with the High Court. So High Court and state government both do this alterations in the state divisions area. Now, deemed metropolitan areas in India are Bombay, Calcutta, Madras and Ahmedabad, but any other area can also be deemed as a metropolitan area according to with consultation the state government can do with the High Court. Section 9 of the CRPC deals with the court of session. So state government shall establish a court of session for every session division. Court shall be presided over a judge appointed by the High Court. Basically, district judges are quite high in rankings in the district judiciary. So there is an exam, KDJ examination, which comes for selection to the higher judicial service examination, or either they go by promotion from the judicial magistrate to the district judge level. Now, this is a court presided over by a judge appointed by the High Court, and additional and assistant session judges are also called session judges, and ADJ can even pass a punishment which is equivalent to a session judge. Place of sitting, High Court by notification determines. For general convenience of parties and witnesses, Court of Session can hold sitting at another place with the consent of prosecution and accused. So, for example, if there is a very high-profile case, with the consent of prosecution and the accused, it can also sit in a different place. Generally, ऐसा होता नहीं है, but if the things come to, let's say, to the roost, then it can happen. Assistant Session Judges, Section 10. All Assistant Session Judges shall be subordinate to the Session Judge in whose court they exercise jurisdiction. So, all Assistant Session Judges are subordinate. So, basically, in District Judiciary, there is a Master Judge that is the Session Judge. ठीक है? वही जो है अपने ड्यूटीज़ के हिसाब से देखते हैं कि किसकी ड्यूटी कब लगेगी, कौन सा जो मजिस्ट्रेट है वो आपका बेल ड्यूटी पर रहेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट जो है उसके ड्यूटी रोस्टर पर कितने दिन वो बेल ड्यूटी के ऊपर रहेगा, कौन से मजिस्ट्रेट के पास क्या ड्यूटी जो है वो दी जानी चाहिए एक्स्ट्रा। अगर हाई कोर्ट जज आ रहे हैं प्रोटोकॉल के अंदर तो उनको कौन किसको रिसीव करेगा, बेसिकली सेशन जज का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको देखना। Now, Section 11 talks about the judicial magistrate. In every district, there shall be established as many courts of judicial magistrates of the first class and of the second class, and at such places as the state government may, by consultation with the High Court, by notification specify. इस Section 11 के अंदर आता है। Section 11 के अंदर state government may, after consultation with the High Court for any local area, one or more special courts of judicial magistrate or first class or the second class to try particular case or particular class of cases. The state government, after consultation with the High Court, may establish for any local area one or more special courts of judicial magistrates of the first class or of the second class to try any particular case. अब Section 11(3) की अगर बात करें, High Court may, when it appears to be expedient or necessary, confer the powers of a judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as the judge in a civil court. तो High Court के पास भी आप देखेंगे यहाँ पर पावर है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट पर डाल दी जा सकती है। बेसिकली सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है काफ़ी लोअर होता है रैंक में, उसको फर्स्ट क्लास की पावर देनी है तो हाई कोर्ट उसको वो दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बिकॉज ये एसेंशियल जुडिशियल फंक्शन है, ये आपको हाई कोर्ट कर सकता है। सेक्शन 12 के अंदर जब हम आते हैं तो चीफ सीजेएम की बात होती है। याद रखें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है और कितना भी फाइन दे सकता है। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 10-12 साल की सर्विस के बाद आप सीजेएम बनते हैं और सीजेएम के पास सारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनका बेसिकली बॉस होता है सीजेएम।
और सीजेएम का बॉस होता है आपका सेशन जज, और सेशन जजेस को सब लोग देखते हैं हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के काम को जनरली देखता है सुपरवाइज, अपील जो है हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट पे जाती है, बट हाईकोर्ट जो है वो सुपरवाइजरी पावर रखता है ऑफ द लोअर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की बात अगर हम करें तो हाईकोर्ट में इज रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फर अपॉन एनी पर्सन हु हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट द पावर ऑफ द जुडिशियल ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास इन रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर केसेस। तो हाईकोर्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए पावर्स दी जा सकती है जेएम फर्स्ट क्लास एंड जेएम सेकंड क्लास की। जेएम का मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 13 अगर हम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की बात करें, नो सच पावर शैल बी कॉन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही पोसेसेस क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू द लीगल अफेयर, सच मैजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। तो जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स हैं आप इनको 1 साल तक के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, बट उनके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मैजिस्ट्रेट के पास होता है टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब देखिए वहाँ पे वही बात आ गई जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज एंड एवरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजेएम के अंदर होते हैं। Now coming to the section 16 of metropolitan magistrate, in every metropolitan area there may be as many court as the metropolitan magistrate as the state government and the high court may specify. Again वही position जो आपकी normal courts के लिए चल रही है वही metropolitan area के लिए चल रही है। Coming now to the executive magistrate, in every district and in every metropolitan area the state government may appoint as many person as it thinks fit to be the executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate. देखिए बहुत सारे लोग एसडीएम होते हैं, आप अगर देखेंगे अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप एसडीएम लग जाते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। बेसिकली उनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी आप बोल सकते हैं, पर उनमें से एक ही होता है जिसको चूज़ करके कुछ एक्सपीरियंस के बाद 10-12 साल के आप बनाते हैं आईएएस। वो आईएएस जब लगता है तो वो डीसी बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे डीएम की। जब वो बात करते हैं हम न्याय की प्रक्रिया के बारे में तो वो डीएम होता है, और जब रेवेन्यू की बात करते हैं तो वही बंदा जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है बेसिकली डीसी इज रिस्पॉन्सिबल एंड इवन आईपीएस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सीनियर मोस्ट आईपीएस इज एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स टू द आईएएस। तो कभी भी अगर आप देखेंगे तो डीसी को जो सैल्यूट है वो आईपीएस मारता है, राइट। और हियरार्की में भी आईएएस इज बिगर इन रैंक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें अगर हम, तो फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर and may appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any persecution, appeal or any proceeding on behalf of the central government or state government as the case may be. So for every high court, central government or state government shall after consultation with the high court appoint a public prosecutor, और एक से ज़्यादा APP लगा सकते हैं। इन पोस्ट के लिए सेंटर द्वारा और स्टेट द्वारा एग्जाम होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल रेलवे के अंदर अगर आपको सरकारी वकील बनना है एग्जाम होता है, CBI के अंदर आपको सरकारी वकील बनना है एग्जाम होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी प्रोसिक्यूशन और अपील करनी है तो इसका एग्जाम जो है होता है। Now we come to section 24 public prosecutor. So for every district the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for the district. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक से ज़्यादा जो है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं, राइट। अगेन APPs आर हियर इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। EDA का एग्जाम होता है इसका गाइस, ठीक है। 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करें, ये बेसिकली स्टेट की कैपिटल में बैठती है और स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मेनी डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक्स फिट। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। डायरेक्टर आप तभी बन सकते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर आप तभी बन सकते हैं जब आपके 10 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, तब आपको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर आप डेप्यूटी डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं। सो सीनियर मोस्ट जो आपके सरकारी वकील होते हैं वो जाके डायरेक्टर बनते हैं प्रोसिक्यूशन में। पावर्स ऑफ द कोर्ट की अब हम बात करते हैं। एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड में बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट जहाँ पे वो फर्स्ट शेड्यूल में ट्रायल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रेप ऑफेंसेस की तो वहाँ यहाँ पे लिख दिया गया कि रेप ऑफेंसेस को 2013 में जस्टिस सोरा कमेटी रिपोर्ट के बाद काफ़ी सेंसिटिवली डील करना स्टार्ट किया गया और इसको ज़्यादातर वही लोग अब ट्राई करते हैं जो कि वुमेन होती हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो वुमेन जो रेप एफ्लिक्टेड है वो जब किसी वुमेन के सामने अपनी बात को रख रही है तो वो काफ़ी सहजता महसूस करती है, तो इसलिए वो वुमेन कैंडिडेट्स के सामने ही उससे वुमेन जो जजेस होते हैं उनके सामने ही रेप विक्टिम्स के लिए बोला गया है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके रेप के केसेस का ट्रायल वुमेन ने, राइट, मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। तो एनी ऑफेंस और एनी अदर लॉ where any court is mentioned in behalf in such law shall be tried by such court and when no court is specified by the high court or any other court जहाँ पे वो offense जो है ट्रायल हो है। सेक्शन 28 सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। हाई कोर्ट के पास जो पावर्स है टू पास सेंटेंस वो अनलिमिटेड है,
वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो है वो पास कर सकते हैं, कोई भी उनके ऊपर जो है आप कह सकते हैं लिमिटेशंस नहीं है। A session judge or additional session judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by such judge shall be subject to confirmation by the High Court. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर सेशन जज ने लेट से रेप किया, किसी व्यक्ति ने गैंग रेप किया, लेट से 4 लोगों ने एक वुमेन का, उसकी सजा है डेथ रेप, 5 लोगों ने लेट से मिलकर किया, तो 5 लोगों को डेथ पनिशमेंट सेशन जज ने सुना दी, परंतु फिर भी वह जो सेंटेंस है वो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास जाएगा और हाई कोर्ट कंफर्म करेगा यस दिस डिसीजन इज राइट। वाई? बिकॉज इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, इसके अंदर बोल दिया गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर ही आपको डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। तो क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में फॉल करता है? हाई कोर्ट फाइनली देखता है कि यस ये फॉल करता है और कोर्ट ऑफ लॉ है वो कि लॉ की कोई अपरेंट एरर तो नहीं है इस केस के अंदर, तब डेफिनेटली जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जजेस है उस जो उनका जो जजमेंट है वो पास हो सकता है वहाँ पर हाई कोर्ट में और डेथ सेंटेंस कंफर्म किया जा सकता है। अगर डेथ सेंटेंस कंफर्म नहीं होता तो वापस जाएगा और कोर्ट बोलेगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई अदर इसको पनिशमेंट दे दी जाए, डेथ पनिशमेंट ना दी जाए। An assistant session judge may pass a sentence authorized by law for death or imprisonment of life or imprisonment for a term exceeding 10 years. तो देखिए एडिशनल सेशन जज और सेशन जज ये दोनों तो कोई भी पनिशमेंट पास कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट इफ द पनिशमेंट इज डेथ सेंटेंस। हाई कोर्ट कुछ भी पास कर सकता है, कोई कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो आपका असिस्टेंट सेशन जज है, एडिशनल नहीं असिस्टेंट, वो 10 साल तक की पनिशमेंट कर सकता है। वही मैंने आपको बताया था जो CJM है उसके बारे में अगर मैं कहूँ आपसे, तो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट द सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये ना तो डेथ पनिशमेंट दे पाते हैं CJM, ना ये दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास और मृत्युदंड, इसको CJM नहीं दे सकते हैं। ऑल्सो उनकी लिमिट जो इम्प्रिजनमेंट की है वो देने की सिर्फ 7 साल है। 7 साल तक की पनिशमेंट जो है वो एक CJM जो है दे सकता है। अगर हम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करें तो वह सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स से ऊपर का नहीं दे सकता है और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000, तो 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है और 10,000 तक का फाइन दे सकता है या तो बोथ दे सकता है। ठीक है, तो याद रखना है हमने, हाई कोर्ट कुछ भी दे सकता है, एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज कुछ भी दे सकता है एक्सेप्ट डेथ पनिशमेंट जो कि कंफर्मेशन, तो डेथ पनिशमेंट वो दे देगा लेकिन कंफर्मेशन देनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। असिस्टेंट सेशन जज ओनली 10 ईयर्स तक का पावर है उसके पास इम्प्रिजनमेंट की। इसके बाद आता है CJM 7 साल तक की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल तक की। अगर हम कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की बात करें, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000। तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 और both. I hope this much is clear to everybody. Now we come to section 31. When a person is convicted at a trial of 2 or more offences, court may subject to the provision of section 71 of IPC sentence him for such offences to several punishments prescribed there for which court is competent to inflict. तो जब 2 और या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस जो है कोर्ट जब चल रहे हैं तो सेक्शन 71 के अंदर several punishments जो है कोर्ट जो है वो दे सकता है। Where such punishments when consisting of imprisonment to commence one after the expiration of other, the court may direct unless the court directs that such punishments shall run concurrently. कोर्ट बोल सकता है कि हाँ साथ में पनिशमेंट काउंट कर ली जाएंगी, लेकिन अगर कोर्ट ने ये नहीं बोला है तब वो पनिशमेंट एक के बाद एक चलेंगी। सो फॉर एग्जांपल मैंने थेफ्ट किया, मैंने रेप किया, रेप की 5 साल की सज़ा मिली और लेट से थेफ्ट की मुझे 6 महीने की सज़ा मिली, 5 की अलग चलेगी, 6 की अलग चलेगी, टोटल 5-5.5 साल में जेल में रहूँगा। तो कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, रेप और आपने जो थेफ्ट किया उनकी पनिशमेंट्स कंकरेंटली रन करेंगे, तो ठीक है फिर मेरे को टोटल 5 साल ही बिताने पड़ेंगे बिकॉज वो 6 महीने उसी 5 साल के अंदर कवर हो जाएंगे। पावर्स ऑफ द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, पुलिस ऑफिसर्स जो रैंक में सुपीरियर हैं पुलिस स्टेशन में, वो लोकल एरिया के अंदर जो है वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो उनके ऊपर कॉन्फर की गई है। ये सेक्शन 36 बात करता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे लेट से अगर कोई कंप्लेंट नहीं लिख रहा है, पुलिस SHO नहीं लिख रहा है, तो SSP के पास आप कंप्लेंट लेके जा सकते हैं बिफोर टेकिंग इट टू द मजिस्ट्रेट। आप SSP के पास भी लेकर जा सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट जो है वो नहीं लिखी जा रही है। तो ये बेसिक पावर्स थी विद रिगार्ड टू द कोर्ट्स इन इंडिया। सेक्शन 36 को आप अच्छे से पढ़ें। सेक्शन 31 से पहले सेक्शन 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्लर्क एग्जामिनेशन में। राइट, सेक्शन 28 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हायर कोर्ट्स की बात कर रहा है, हाई कोर्ट, एडिशनल सेशन जजेस एंड सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस। इसके बाद आपने जो है ये जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है, इसको आप अगर एक धीमी रीडिंग भी देते हैं तो आप डेफिनेटली जो है बहुत अच्छे से इस पेपर को कर पाएंगे। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बेसिकली यही हैं जो आपके सामने है, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें से अगर आपको पढ़ना है ज़्यादा तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं ये पढ़ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है बेसिकली आपके इंक्वेस्ट में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अननेचुरल तरीके से मर गया है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं आता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं उसे। 174 सेक्शन है CRPC का, आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और
इसके अलावा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साल तक के लिए आप स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, तो आप 1 ईयर के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, वो भी तब जब आपकी क्वालिफिकेशन है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने वाली, राइट। इसके अलावा बाकी सारे सेक्शन सिर्फ रीडिंग सेक्शन है। आई होप आप लोग ने गामा प्रोग्राम ले लिया है और आप लोग इन प्रोग्राम्स को फॉलो कर पा रहे हैं, अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर होगी। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।